Hello students, today we will start the next topic is carbohydrates. Carbohydrates are important biomolecules and they play a vital role in our daily life in the form of clothing, shelter and food. In clothing are cotton clothes. They are made up of cellulose. Shelter in making homes and other buildings we use wood. Again in the wood we have cellulose. Food we eat starch, glucose, fructose. These all molecules are carbohydrates. Thus they important vital role in our daily life in terms of clothing, shelter and food. They are obtained from plant sources mainly. In the plants, they are prepared by the process photosynthesis. In photosynthesis, carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll pigment of leaves form carbohydrates and oxygen. This carbohydrate molecule acted food gives us energy on digestion and oxygen is required for respiration. We take oxygen and exhale out carbon dioxide. This carbon dioxide with water form food. General formula of carbohydrates we represent CxH2O1. So carbohydrates play important role in our life and they are mainly obtained from plant sources. So now coming to the name of these compounds. From the name it seems they are hydrates of carbon. Hydrates of carbon means suppose we have X molecule of carbon and in this we have Y molecules of water. Earlier definition of carbohydrates. According to earlier definition of carbohydrates, carbohydrates are hydrates of carbon. That is, we have water molecule that is hydrate and along with it we have carbon. But according to this definition, we should have two hydrogen and one oxygen atom in the molecular formula of each carbohydrates. But there are few compounds like ramenose, which has molecular formula C6H12O5, deoxyribose, which has molecular formula C5H10O4. In these two molecules, hydrogen and oxygen are not in the ratio of 2:1. Again in deoxyribose, hydrogen and oxygen are not in the ratio of 2:1. So these, according to the definition of hydrates of carbon, these two molecules can't be included in the carbohydrates category. Again we have few molecules. These are the limitations of the nomenclature in which we say the carbohydrates are hydrates of carbon. Again we have few more compounds which are not at all carbohydrates but they following this formula. First example is formic acid, formaldehyde. That is, in this compound if you see we have CH2, but this compound is not carbohydrate. Similarly, next compound is we have acetic acid. In acetic acid we have C2H4O2. Again, hydrogen and oxygen are in the ratio of 2:1. But both these compounds are not carbohydrates, but they are following the definition of hydrates of carbon. तो जो हमारी पहली डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट्स की जिसके अकॉर्डिंग दीज कंपाउंड्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स
इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते। एंड कुछ और कंपाउंड्स हैं जिनमें वो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, हाइड्रेट H2O वाला हिस्सा एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो हमारे कार्बोहाइड्रेट में। थर्ड है हमारी कार्बन डोंट फॉर्म हाइड्रेट, कार्बन डजंट फॉर्म हाइड्रेट। तो इस लिमिटेशंस की वजह से हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के जो अर्लियर डेफिनेशन है दैट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हमारी फॉलो नहीं होती। तो हमारे पास जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन मॉलिक्यूल, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमारे पास हो सकता है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मॉलिक्यूल हमारे पास हो सकता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन का हमारे पास क्या मीनिंग है? पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स वी हैव मैनी OH group in the molecule, along with that we have one aldehyde functionality. Polyhydroxy ketone means we have many hydroxyl molecules in the molecule and there along with it we have ketone functionality. ये definition को explain करने के लिए हम पहले aldehyde ketone that is glucose and fructose की structure discuss करेंगे। हमारे पास ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे aldehyde होता है, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे HOH कीटोन में हमारे पास, फ्रक्टोज में हमारे पास CH2OH, C डबल बॉन्ड O, देन CHOH, COH, H। टोटल हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन होती है। दैट इज मेरे पास ये मॉलिक्यूल होता है। तो अकॉर्डिंग टू इस डेफिनेशन में हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड है दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बाकी सारी कार्बन पे एक OH ग्रुप पड़ा है दैट मीन्स हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। यहाँ पे फ्रक्टोज की एग्जांपल हमारे पास कीटोन वाले केस में आ जाते हैं। हमारे पास हर कार्बन पे एक OH और एक कार्बन पे हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। तो जो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होते हैं वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस पे हमें ये कंपाउंड्स देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये मॉलिक्यूल्स में हमारे पास जो एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप है वो फ्री फॉर्म में नहीं होता, फ्री फॉर्म की बजाय वो हेमीएसिटल एंड कीटल फॉर्म में होता है। अब पहले हम हेमीएसिटल कीटल फॉर्म की बात करेंगे, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ये कैसे प्रेजेंट है। हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, एल्डिहाइड को हम जर्नल ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, एल्कोहल के साथ ROH के साथ ये मॉलिक्यूल हमारे पास RHCOR इस फॉर्म में होता है। ऐसे हमारे पास कोई कीटोन मॉलिक्यूल है, एल्कोहल के साथ हमारे पास वो ये हमारे पास हेमी एसिटल फॉर्म होगी, ये हमारे पास हेमी कीटल फॉर्म होगी। एक और एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ दोनों मॉलिक्यूल्स कीटल दे देते हैं दैट इज RCR OR OR R सॉरी यहाँ पे एल्डिहाइड था तो यहाँ पे H आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास कीटल फॉर्म आ जाएगी। तो एल्डिहाइड कीटोन जो हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है यहाँ पे ये फॉर्म हेमीएसिटल एंड हमारे फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप हेमीएसिटल एंड कीटल फॉर्म में एग्जिस्ट करे दैट इज जो मेरे पास पांच। अब इस केस में ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बोनाइल ग्रुप इस वाली ऑक्सीजन के साथ हमारे पास यहाँ पे COH दैट इज ये हमारे पास हेमी एसिटल फॉर्म होगी। ऐसे
कीटोन जो हमारे पास फ्रक्टोज मॉलिक्यूल में है, C डबल बॉन्ड O, COH H, थर्ड कार्बन पे हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन में हमारे पास H इस साइड होता है, OH इस साइड होता है। फोर्थ में हमारे पास OH H, OH H, ये मॉलिक्यूल होता है। इन केस ऑफ फ्रक्टोज में हमारा कीटल जो फॉर्म होती है, हेमी कीटल, वो ये वाली ऑक्सीजन और सेकंड कार्बन और सिक्स्थ कार्बन के बीच में होता है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे ये OH फॉर्म हो जाती है। तो हमारे पास जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे मॉलिक्यूल में पॉली हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म है। बट जो हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप है वो हमारा फ्री फॉर्म में नहीं होता, वो हमारे पास हेमी एसिटल एंड कीटल फॉर्म में होता है। हमारे पास आगे साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगी, उसमें भी ये स्ट्रक्चर हमारी और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो डबल बॉन्ड है एक एल्कोहल के साथ RCH, ये वाली मोइटी एज इट इज, और साथ में OR एंड OH आ जाता है। अब इस केस में हमारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, C डबल बॉन्ड O था, वो ये वाले एल्कोहल के साथ हमें OR दे दिया, बाकी कार्बन हमारी R एज इट इज लगी हुई है, H भी हमारा लगा हुआ है, साथ में हमारे पास OH ग्रुप आ गया। ऐसे ही हमारे पास जो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल था उसके इसमें हमारे पास C डबल बॉन्ड O, एल्कोहल के 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, हमारे साथ में OR एंड OH आ जाता है। अब इस केस में हमारे पास C डबल बॉन्ड O था, C डबल बॉन्ड O था, एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ हमारे पास एक R ये लगा हुआ, एक R ये लगा हुआ, साथ में हमारे पास यहाँ पे O, हमारे पास H आ जाएगा और ये वाला हमारे पास OR बॉन्ड आ जाएगा। तो हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता, वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल फॉर्म में होते हैं। और जो हमारी हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल फॉर्म है, एसिड के प्रेजेंस में वापस एल्डिहाइड एंड कीटोन लिखते हैं, माइल्ड एसिड के प्रेजेंस में। दैट मीन्स जो हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल है वो हमारे पास आगे हम डिस्कस करेंगे, इक्विलिब्रियम शो करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वापस हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन आ जाता है। तो जो हमारी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हमारे पास ओपन एंड साइक्लिक दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं, are also called सैकराइड्स। अब ये मॉलिक्यूल्स को हम मोनोसैकराइड, डाई, एंड पॉलीसैकराइड्स में भी क्लासिफाई कर देते हैं। मोनो मीन्स हमारे पास 1 सैकराइड यूनिट है, ओलिगो मीन्स हमारे पास 2 से 9 सैकराइड यूनिट होते हैं, पॉली मीन्स वी हैव हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऑफ सैकराइड यूनिट। मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स है जो हमें हाइड्रोलिसिस पे ओनली 1 सैकराइड देते हैं। ये सैकराइड जो मॉलिक्यूल है वो आगे 3 से 8 कार्बन का बना होता है। हमारे पास जो सैकराइड एक यूनिट आएगा मोनोसैकराइड की हाइड्रोलिसिस से हमें सैकराइड मिलेगा, वो सैकराइड हमारा 3 कार्बन का भी होता है, 4 का भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8 कितने भी कार्बन का हो सकता है। बट ये फर्दर हाइड्रोलिसिस करके हमें और सैकराइड देते हैं। मोनोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस हमें 1 सैकराइड देते हैं, ओलिगोसैकराइड्स हमें हाइड्रोलिसिस पे 2 से 9 सैकराइड दे देते हैं, और हर सैकराइड फर्दर अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम से बना होता है। इट कैन बी 3, कैन बी 4, कैन बी 5, कैन बी 6। ऐसे पॉलीसैकराइड में हमारे पास मोर देन 100 सैकराइड यूनिट्स होते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस पे हमें बहुत सारे सैकराइड या यूनिट्स मिल जाते हैं। अब जो हमारे मोनोसैकराइड्स में हम कह रहे हैं हमारे पास 3 से 8 कार्बन वाला कोई भी कंपाउंड हो सकता है। अगर मेरे पास मोनोसैकराइड में एल्डिहाइड ग्रुप है तो उन सैकराइड्स को हम एल्डोज फॉर्म कह देते हैं। अगर मेरे पास एल्डोज फॉर्म दैट मीन्स जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कीटोज मीन्स जहाँ पे मेरे पास कीटोन यूनिट प्रेजेंट है। अब हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, अगर मेरे पास कोई
एल्डोज है, जिसमें मोनोसेकेराइड है। दैट मीन्स मेरे पास पहले 3 कार्बन है। यहाँ पे मेरे पास एल्डोज फॉर्म ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर स्टडी करी है। ग्लिसरॉल्डिहाइड हमारे पास, मैं एक की स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देती हूँ। ग्लिसरॉल्डिहाइड हमारे पास क्या होते हैं, CHO OH H CH2OH। दैट मीन्स ये मेरा एक मोनोसेकेराइड है। इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करके हमें और सेकेराइड नहीं मिलता, और ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। ऐसे अगर मेरे पास 4 कार्बन हो, उस एल्डोज फॉर्म का हमारे पास नेम हो जाता है एरिथ्रोज या थ्रियोज। एरिथ्रोज या थ्रियोज। ऐसे ही 5 कार्बन वाला हमारे पास मॉलिक्यूल हो जाता है राइबोज, जाइलोज। 6 कार्बन वाला बड़ा ही फेमस है हमारे पास, ग्लूकोज फॉर्म हो जाती है या मैनोज हो जाती है। तो ये हमारे सारे मॉलिक्यूल एल्डोज है। दैट मीन्स इस केस में अलग अलग नंबर कार्बन है, बट हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। हमारे पास कार्बन 3 से 8 कितना भी नंबर हो सकते हैं। हमने ये 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स कर लिए जिसमें अलग अलग कार्बन का नंबर है। ऐसे कीटोन्स हमारे पास वो कंपाउंड्स हैं जहाँ पे हमारे पास कीटोन यूनिट प्रेजेंट है। अगर हमारे पास 3 कार्बन वाला है तो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, नेम से क्लियर है, मेरे पास एसीटोन मॉलिक्यूल है, C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सिल, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे। ऐसे 4 कार्बन वाला जो कीटोन्स फॉर्म होएगी उसका हमारे पास नेम होता है एरीथ्रोलोज। एल्डोज फॉर्म का नेम था एरिथ्रोज और कीटोन्स फॉर्म का एरिथ्रोलोज। ऐसे ही हमारे पास 5 कार्बन वाली फॉर्म राइबोलोज एंड जाइलोलोज हो जाते हैं। राइबोलोज एंड जाइलोलोज। 6 कार्बन वाला हमारे पास बड़े कॉमन एग्जाम्पल है फ्रक्टोज मॉलिक्यूल हो जाता है। तो ये हमारे पास ये सारे मोनोसेकेराइड्स हैं जो फर्दर हाइड्रोलिसिस पे एक ही हमारे पास एक ही यूनिट होता है, मोर यूनिट्स नहीं आते। और ये एक ही यूनिट कार्बन का नंबर वेरी करता है। 3 कार्बन वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला। और ये एल्डोज फॉर्म भी हो सकते हैं, कीटोज फॉर्म भी हो सकते हैं। एल्डोज में हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आ जाते हैं, कीटोज में हमारे पास कीटोन ग्रुप आ जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट है इसमें कंपाउंड ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल हमें हाइड्रोलिसिस पे 2 से 9 मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं। हमारे पास सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ओलिगोसेकेराइड्स। दैट मीन्स हमारे पास डाइसेकेराइड भी हो सकते हैं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एक्सेट्रा। डाइसेकेराइड्स मॉलिक्यूल हमें हाइड्रोलिसिस पे 2 मोनोसेकेराइड यूनिट देंगे। On hydrolysis we will get 2 monosaccharide unit। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है लैक्टोज। लैक्टोज में हमारे पास 2 यूनिट्स मिलते हैं। ऐसे सुक्रोज आते हैं, उसमें हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है। माल्टोज, ये हमारे मॉलिक्यूल है जो हमें हाइड्रोलिसिस पे 2 सेकेराइड यूनिट देते हैं। जो हमारे पास सुक्रोज है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11। ऑन हाइड्रोलिसिस हमें एक ही ग्लूकोज C6H12O6 एंड एक फ्रक्टोज C6H12O6। दैट मीन्स जिसमें हाइड्रोलिसिस हमें 2 मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं। ट्राइसेकेराइड्स में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स 3 ऑन हाइड्रोलिसिस 3 मोनोसेकेराइड्स देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 3 मोनोसेकेराइड्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है रैफिनोज शुगर। रैफिनोज शुगर हाइड्रोलिसिस पे हमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज मॉलिक्यूल दे देती है।
ऐसी टेट्रासेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस हमें 4 मोनोसेक्राइड यूनिट देते हैं। ऐसे पेंटा, हेक्सा, हेप्टा हमें 5, 6, 7 रिस्पेक्टिवली सेक्राइड यूनिट दे देंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स नेम से क्लियर है, पॉली मीन्स मैनी। जो मॉलिक्यूल्स हमें मैनी नंबर ऑफ सेक्राइड यूनिट दे दे वो हमारे पॉलीसेक्राइड्स हो जाते हैं हाइड्रोलिसिस पे। पॉलीसेक्राइड में हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल आ गई सेलुलोज। देन हमारे पास आ गई स्टार्च। ये मॉलिक्यूल्स हमें हाइड्रोलिसिस पे, जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड्स के आ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन होगी, क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ कितने सेक्राइड यूनिट्स हमें हाइड्रोलिसिस पे मिलते हैं। हमारा मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड, ओलोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड हो सकते हैं। मोनो में हमें एक ही मिलता है, ओलिगो में 2 से 9 मिल जाते हैं, पॉली में हमें मैनी सेक्राइड यूनिट हाइड्रोलिसिस में मिल जाते हैं। अगली हमारे पास क्लासिफिकेशन है इन कार्बोहाइड्रेट्स की, शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर नेम से क्लियर है, शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर कौन से होती है? स्वीट होती है नेचर में। हमारे पास जो टेबल शुगर होती है, इट मीन्स जो कंपाउंड्स टेस्ट में स्वीट है, स्वीट इन टेस्ट, वाटर सॉल्युबल है, क्रिस्टलाइन है। आप जो हमारे पास चीनी होती है उसमें प्रॉपर वाटर सॉल्युबल होती है, मीठी होती है टेस्ट में, एंड जो हमारे पास छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। नॉन शुगर में हमारे पास टेस्टलेस होगी, इनसॉल्युबल होगी, एंड हमारे पास अमोर्फस तो इन दिस वे हम शुगर एंड नॉन शुगर फॉर्म में इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेम से क्लियर है, जो हमारे किसी भी मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। हमारे पास जो यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल हम रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ यूज करते हैं, हमारी शुगर रिड्यूसिंग एजेंट होगी, और हम रिएजेंट यहाँ पे यूज करते हैं टोलन रिएजेंट। जो मॉलिक्यूल हमारे टोलन रिएजेंट को रिड्यूस करते एंड खुद ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, तो हमारे पास यहाँ वो रिड्यूसिंग शुगर आ गई। रिड्यूसिंग शुगर में जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म फ्री भी हो सकती है और वो हेमी एसिटाइल कीटल फॉर्म में भी हो सकती है। तो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर में एग्जांपल होगी ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ये मॉलिक्यूल हमारे ओपन और साइक्लिक दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। ओपन में हमारे पास फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप हो गया, और यह हमारा जो एल्डिहाइड कीटो ग्रुप है वो हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म में होता है। नॉन रिड्यूसिंग में हमारे पास टोलन रिएजेंट को वो डोंट रिड्यूस। इस केस में हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होता, नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, और वो एसिटल और कीटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जो हमारी शुगर टोलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं हम उनको रिड्यूसिंग शुगर कह देते हैं, जो नहीं रिड्यूस करती उनको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कह देते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाती है सुक्रोज की। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन होगी इन मॉलिक्यूल्स की।
ऑन द बेसिस ऑफ कितने सेक्राइड यूनिट है, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर नॉन शुगर टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर वो हमारी टोलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देती है नहीं कर देती, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग नेचर हम इन कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर देते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, जब भी हम स्टडी करते हैं जो मोनोसेक्राइड यूनिट में हम सबसे दो कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है उसमें हमारी सबसे मेन डिस्कशन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज पे होगी। सबसे पहले हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, बिकॉज ये हमारी ग्रेप्स में फ्रूट्स में कॉमनली मिलती है। इसके अलावा ये हमें ग्रेप्स में मिलती है, हनी में मिलती है, तो इस वजह से इनको हम ग्रेप शुगर कहते हैं। ह्यूमन ब्लड में भी ये कंबाइंड फॉर्म में होती है, कंबाइंड फॉर्म में होती है। ये मॉलिक्यूल हमारा सुक्रोज में भी होता है, स्टार्च में भी होता है। सुक्रोज एंड स्टार्च हाइड्रोलिसिस पे हमें ग्लूकोज यूनिट देते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हमारा मेल्टिंग पॉइंट इसका नियरली 146 डिग्री के आसपास होती है फॉर्म, वाटर सॉल्युबल होती है। ग्लूकोज हमारी इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाती है और हमारी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें सॉल्युबल नहीं होती या पार्शियली सॉल्युबल होती है। और इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर की वजह से इसको हम डेक्स्ट्रोज भी कह देते हैं। दैट इज ये ऑप्टिकल जो लाइट है उसको राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, दैट्स व्हाई इसका नेम हमारे पास डेक्स्ट्रोज भी आ जाता है। देन उसके बाद है मेथड प्रिपरेशन की। ये मॉलिक्यूल्स को हम कैसे बना सकते हैं, हम लेबोरेटरी स्केल पे हम इस मॉलिक्यूल को सुक्रोज से बना सकते हैं। सुक्रोज हमारे पास H22O11 होता है। ये मॉलिक्यूल को हम जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आ जाते हैं। तो हमारे पास इन दिस वे हम इन मॉलिक्यूल्स को लेबोरेटरी स्केल पे बना सकते हैं। कमर्शियल स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे हम इन कंपाउंड्स को स्टार्च से बनाते हैं। स्टार्च जो हमारा कंपाउंड है वो हमारे पास होता है C6H12O5। मैनी यूनिट्स हम कहते हैं ना, पॉलीसेकेराइड है, मैनी यूनिट्स होते हैं। मैनी यूनिट्स होते तो हमने यहाँ पे N लगा दी। ऑन हाइड्रोलिसिस ये मॉलिक्यूल हमें N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज दे देता है, मोर देन 100,000। अब जब ये हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया ग्लूकोज को, उस रिएक्शन मिक्सचर को हम न्यूट्रलाइज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। देन उसके बाद हमारे पास कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करके हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म आ जाती है। तो लैब में हम इसको सुक्रोज से बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे हम इन मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम स्टार्च से बना सकते हैं। अब हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सिल दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। दोनों ग्रुप प्रेजेंट है तो हमारे कंपाउंड जो एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड की रिएक्शन देते हैं, जो अल्कोहल की रिएक्शन देते हैं, वो सारी रिएक्शन ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल देगा। तो सबसे पहले हमारे पास एल्डिहाइड की रिएक्शन है, कोई भी जनरल एल्डिहाइड RCHO HCN के साथ हमें ये कंपाउंड दे देता है, दैट इज साइनोहाइड्रेट। ऐसे ही हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, हम बार बार एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करें, हम जनरल CHO, जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन दिखा रहे तो हम जनरल 4 यूनिट ये CHOH एंड CH2OH
कि एल्डिहाइड की रिएक्शन दिखा रहा है, हमें बेसिकली यही ग्रुप दिखाना है। HCN के साथ हमारे पास क्या रिएक्शन होगी, साइनोहाइड्रिन बन गई OH CnH, बाकी यूनिट हमारा एज इट इज लगा हुआ है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिएक्शन शो करते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है RCHO हाइड्रोक्सिल अमीन, दिस इज NH2OH के साथ हमारे पास ऑक्साइन्स बनाता है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देते हैं, दैट इज RCH डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइन्स। तो हमारा जो एल्डिहाइड कीटोन ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, वो भी हमारा अगेन CHO CHOH 4 CH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ हमें ऑक्साइन दे देगा। वो ऑक्साइन का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH, बाकी सारा मॉलिक्यूल हमारा एज इट इज आ जाएगा। देन उसके बाद हाइड्रोक्सिल अमीन के बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। कोई भी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन हमारे पास होता है NH2 NH2। अब हाइड्रोजीन में एक फिनाइल ग्रुप लगा है तो NH2 NH और दूसरी हाइड्रोजन की जगह हमारे पास C6H5। ओके, फिनाइल हाइड्रोजीन एल्डिहाइड के साथ फिनाइल हाइड्रोजोन देता है। अगेन यहाँ पे भी हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड का ऑक्सीजन, हाइड्रोजीन का H2 हाइड्रोजन लूज हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH C6H5। ऐसी अगर मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है CHOH 4 CH2OH, हमारा फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ C डबल बॉन्ड NH C6H5 CHOH 4 यूनिट्स, साथ में हमारे पास यहाँ पे CH2 दैट इज फिनाइल हाइड्रोजोन मिल जाएगा। ये तो है जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजीन का। अगर मेरे पास ग्लूकोज एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन या 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करती है तो मेरे पास यहाँ पे ओसाजोन बन जाता है, दैट इज CH डबल बॉन्ड NH C6H5 C डबल बॉन्ड NH C6H5, बाकी सारा मॉलिक्यूल हमारा एज इट इज। इस मॉलिक्यूल को हम ओसाजोन कहते हैं। अब ये ओसाजोन हमारा कैसे बन रहा है, जो हमारे पास इसके 2 मैकेनिज्म है, वन इज फिशर मैकेनिज्म और दूसरा मॉडर्न मैकेनिज्म। फिशर मैकेनिज्म में हमारे पास क्या कहते हैं, जो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजीन एल्डिहाइड के साथ हमें हाइड्रोजोन दे देता है, दैट इज ये स्ट्रक्चर दे देता है एक मॉलिक्यूल। सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजीन सेकेंड कार्बन का, इसके लिए हमें एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर की जरूरत है। हम एल्डिहाइड ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हमारे पहले हाइड्रोजीन ने हाइड्रोजोन बना दिया, बाकी मॉलिक्यूल हमारा एसिड आ गया। यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। सेकेंड मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजीन का कहते हैं
सेकेंड वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है। दैट इज हमारे पास H, ये एल्कोहल है हमारी, ऑक्सीडाइज होगी, हमारे पास कीटोन आ जाएगा। इट मीन्स हमारे पास सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ क्या आ गया, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, देन C डबल बॉन्ड O, देन हमारे पास सारा मॉलिक्यूल एज इट इज आ जाएगा। थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन, इस कीटो ग्रुप के साथ रिएक्ट करके हमें ओसाजोन दे देता है, दैट इज HC। तो ये हमारे पास फिशर मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग है, बट फिशर मैकेनिज्म के हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स है। फर्स्ट ड्रॉबैक है जो हमारा फिनाइल हाइड्रोजीन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। फिनाइल हाइड्रोजीन हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो यहाँ पे एल्कोहल मॉलिक्यूल को कैसे ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लिमिटेशन आ गई कि बीइंग अ रिड्यूसिंग एजेंट हाउ कैन इट ऑक्सीडाइज अ एल्कोहल मॉलिक्यूल टू कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप। सेकेंड है, अगर मैं एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन यूज करती हूँ तो मेरे बाकी सारे OH से के क्रॉसपॉन्डिंग जो भी है ऑक्सीडाइज होके हमारे पास हाइड्रोजन क्यों नहीं बनती। तो ये हमारे पास ड्रॉबैक्स थी फिशर मैकेनिज्म।